तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द सिलेबस, राइट। आपके पास पेन होगा, नोटबुक होगा, सिलेबस स्टार्ट कर दो, ठीक है। लिखना चैप्टर्स के नाम। सब्जेक्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Module by module wise. First chapter, first module is introduction to software engineering and process models. Chapter number 2 or module number 2 is software requirements analysis and modeling. Chapter number 3, module number 3 is software estimation metric. Chapter number 4, module number 4 is software design. Chapter number 5 is software testing. And last module, chapter number 6 is software configuration management, that is SCM, software configuration management, quality assurance and maintenance. So in all, in software engineering, we have total 6 modules. First is introduction to software engineering and process models. Second is software requirements, analysis and modeling. Third is software estimation metric. Fourth is software design. Fifth is software testing. And sixth is software configuration management, quality assurance and maintenance. नोट डाउन कर लिया सिलेबस आपने? अगर नोट डाउन कर लिया होगा तो नोटबुक बंद कर दो और इधर देखो। नाउ वी विल डिस्कस कि अपने को हर एक चैप्टर में डिटेल में क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लिया सिलेबस? एक मिनट सर। यस। ना अपना नोटबुक बंद कर दो, इधर देखो। चलो, software engineering. First of all, before start with the subject, we will discuss about what is software, what are the different characteristics of software, what are the different types of software, what is basically a software engineering is, and why we require this concept of software engineering. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सॉफ्टवेयर। चलो, मुझे कोई बता सकता है क्या, हाउ यू डिफाइन अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या होगा? एनीवन? अनिमेश, आकाश, अनुष्का, अपेक्षा, अथर्व, गायत्री, एनीवन? Basic definition of software. Can anyone tell me? Yes. नहीं? चलो अभी इधर मैं बता देता हूँ। यस यस, इट इज अ, जोर से बेटा। Programs and other operating information. Okay, software is, yes, software is a collection of programs or it is a set of instruction. बराबर है, perfect. Any other definition? चलो इधर देखो, what is basically a software? आपने बराबर बोला बेटा।
software is nothing but a set of programs, a collection of programs. Because जब हम बोलते हैं software, it is basically a set of programs which are executed sequentially to get the desired result or required output. ठीक है? So it is a set of programs which are executed sequentially to get the required output or required result is called as software. Perfect. What is program basically? Program is nothing but a set of instructions which when executed sequentially to get the required output or desired result is called as program. Software is a set of program. Program is a set of instruction. And what is instruction? Obviously, any statement which has a programming syntax is called as instruction. तो अगर diagram draw करना होगा तो मैं बोलूंगा first we start with the instructions. A set of instructions becomes a program, and set of program becomes a software. ठीक है? Okay, चलो software समझा. What are the different types of software you know? What are the various types of software you know? आपको कौन से types of softwares पता है? Yes. Hello. Very first type of software is called as system software. ठीक है? चलो आप एग्जांपल दे सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर का? Any example of system software? Can I say operating system is a system software? The Linux, Windows. Obviously, Linux operating system, Windows operating system, all the types of operating systems are nothing but even अपने mobile का Android operating system is a system software. Yes. So what is basically a system software? Operating system आपको पता है. What is basically operating system? It is a system software, but the main role of operating system is nothing but it is acting as a intermediator between computer hardware and end users. Because computer hardware doesn't understand high level language जो user को समझता है, and user doesn't understand a machine language जिसको आप binary language बोलते हो, right? तो दोनों के बीच में कोई तो ऐसा इंटरमीडिएटर चाहिए जो दोनों का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकता है. तो बेसिकली व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है यूजर के लिए, राइट? So that's why operating system is a system software. So I can say that operating system is a system software. Even आप जब प्रोग्राम लिखते हो C, C++, Java, आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो बिकॉज आपने जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है C, C++, Java सब हाई लेवल लैंग्वेजेस है, करेक्ट है, जो मशीन को आसानी से नहीं समझते. जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो होता क्या है? कंपाइलर कन्वर्ट योर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन इक्विवेलेंट कोड, बराबर है. सो कंपाइलर भी अपना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सो असेंबलर है, कंपाइलर है, लोडर्स, लिंकर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर. बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम रन नहीं होता. सिस्टम को अगर एग्जीक्यूट करना है कुछ चीजें, सिस्टम को रन होना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है. ठीक है? इमेजिन आपके पास कंप्यूटर है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के. तो अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेंगे तो यू कैन नॉट रन एनी ऑफ दी अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? जब सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ही नहीं हो सकते. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टम. सेकेंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. चलो, एनी एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? Any example of application software? General purpose. MS Word. Okay, application software are also called as general purpose software. Correct, perfect. Vivek, perfect. AutoCAD can be application software. Perfect. Photoshop. Oba, yes, that is all system application software. Correct.
एनी अदर? बस ओके ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली एप्लीकेशन? आप रेलवेज चैट में कोई आया है? रेलवेज रिजर्वेशन कैमरा एप्लीकेशन, ओके ओके, पॉसिबल है, पॉसिबल है। आकाश रेलवेज परफेक्ट। रिजर्वेशन सिस्टम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ओके, कैन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एकदम सिंपल है ना बेटा, जो डेली यूज में होने वाले एप्लीकेशंस देखो, डेली यूज वाले एप्लीकेशन कौन से? एग्जांपल सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, करेक्ट है, इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? इवन तुम्हारा एडोब रीडर इज ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, करेक्ट है? इवन तुम्हारा विंडोज मीडिया प्लेयर, इट इज ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, अगर आपके पास एडोब रीडर नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल का एक्सेस, ओपन क्लोज एंड बाकी के काम नहीं कर सकते, आपका सिस्टम चल सकता है। आपके पास मीडिया प्लेयर नहीं है, वीएलसी प्लेयर अवेलेबल नहीं है, तो ओके, मल्टीमीडिया फाइल्स रन नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर तो चल सकता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इवन आपके सबके हाथ में मोबाइल है, राइट? मोबाइल पे जितने भी ऐप आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किए हैं, वो सारे उसको एप्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर नथिंग बट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, करेक्ट है? इवन इवन जिस प्लेटफॉर्म पे अपन लेक्चर ले रहे हैं, जूम, इट इज ऑल्सो, या गूगल मीट, ये जो भी प्लेटफॉर्म्स है, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है, ये सारे प्लेटफॉर्म सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। बिकॉज जूम इस प्लेटफॉर्म का, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, राइट? सो बोलो, व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यू नो? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Next is programming software, right? As the name implies, what is programming software? Programming softwares are the software which are basically used to develop a program. It is programming software. Example, TC, Turbo C, it is programming software. Even तुम्हारा JDK programming software, Turbo C, हाँ perfect आकाश, ये सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोग्रामिंग के लिए यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा तुम्हारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, राइट? चलो बोलो, व्हाट इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर? यस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन बी अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। यस, डेटाबेस सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जहां आप डेटाबेस, यस, ओरेकल, परफेक्ट आकाश, ओरेकल कैन बी अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, परफेक्ट। यस, नेक्स्ट आएगा आपका वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। बोलो, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, XML है, HTML है, DHTML है, विजुअल स्टूडियो है, राइट, फ्लटर है, जो भी वेब एप्लीकेशंस के रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, सारे वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है? सिक्स्थ आता है आपका गेमिंग सॉफ्टवेयर, राइट? गेमिंग सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर बेसिकली used in a gaming applications are called as 3D Unity, जिसको आप बोलते हैं, these are the gaming softwares, करेक्ट है? और क्या क्या टाइप्स के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? बोलो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट, गेमिंग एप्लीकेशंस, अच्छा, इंजीनियरिंग, और आई कैन से दैट आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जिसको आप ऑटोकैड बोलते हो, करेक्ट है? या इवन मैटलैब बोलते हो, साइलैब बोलते हो, दिस ऑल आर मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर्स, राइट? नेक्स्ट आएगा आपका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? बेसिकली embedded system is a system where the hardware is actually run by a software called as embedded system. All artificial intelligence, all robotic application softwares are nothing but the embedded software, ठीक है? तो जनरल आइडिया आया what is software, right? What are the different types of software? अब पढ़ेंगे what are the different characteristics of software, ठीक है? चलो, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? चलो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, राइट? सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, it is always
it is always developed in a classical sense. Right? Software cannot be manufactured. It is always developed in a classical sense. Correct है? और using a classical approach. Point simple है, characteristic simple है, but meaning बहुत बड़ा है उसमें. देखो, software cannot be manufactured. Likewise, hardware जो होता है वो manufactured होता है, but software कभी भी manufactured नहीं होता. इसका रीजन क्या है? हार्डवेयर मैन्युफैक्चर्ड होता है, इसका मतलब क्या? और सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर नहीं होता, इसका मतलब क्या है? सिंपल. Once you design a particular hardware instrument, right? And अगर आपको सिमिलर हार्डवेयर n number of times बनाना है, उसके n number of copies बनाने हैं, ध्यान से सुनो. The time, that is duration required to develop a software is same. Cost involved in developing a same hardware device is same, right? Duration is same, cost is same, effort is same. So, जैसे एग्जाम्पल, ये पेन एक डिवाइस है. अगर मैंने ये पेन डेवलप किया हुआ है, मैंने ये पेन डिजाइन किया हुआ है, मैंने ये पेन मैन्युफैक्चर किया हुआ है, सो सिमिलर कंपनी के सेम पेन की कॉस्ट सेम रहेगी, बिकॉज इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगने वाला एफर्ट, लगने वाला ड्यूरेशन, लगने वाला कॉस्ट सेम ही रहेगा इन केस ऑफ हार्डवेयर. बट इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज एक्चुअली अ टीम वर्क. करेक्ट है? अब सिंपल प्रोग्राम, टीम्स में कितने लोग बैठे हुए हैं? से 40, ठीक है, इंक्लूडिंग मी. सपोज 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन अ टीम. अब मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूं लिखने के लिए, ठीक है? क्या मुझे आप बताओ, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए 40 के 40 स्टूडेंट्स को सेम ड्यूरेशन, सेम एफर्ट, सेम कॉस्ट, सेम लैंग्वेज, सेम लाइन ऑफ कोड, जिसको आप एलओसी बोलते हो, लगेंगे क्या रे? ऑब्वियसली नहीं. यस. तो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता जैसे हार्डवेयर मैन्युफैक्चर्ड होता है. सॉफ्टवेयर किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक तुम्हारा टीम वर्क है. सो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, it is always developed in a classical sense or classical approach. Means if you want to design a software, first job is to select the approach to develop a software. Select approach means what? आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टैटिक अप्रोच से करना है, इवोल्यूशनरी अप्रोच से करना है, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट है, न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, री इंजीनियरिंग है. कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है? आपके एंड यूजर कौन कौन है सॉफ्टवेयर के? आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है सॉफ्टवेयर के? सॉफ्टवेयर के एंड यूजर्स का एंड स्टेक होल्डर्स का रिक्वायरमेंट क्या है? Right? And if you want to develop a software, simple linear approach is to accept a requirement about a software which is under development. Once you accept all the requirement, static approach की बात कर रहा हूं, once you accept all the requirement, freeze those requirement by preparing requirement specification document. Once the requirements are finalized, then the next step is design. Design is nothing but a diagrammatic representation of system. It may consist of flow chart, it may consist of algorithm, it can be ER diagram, it can be class diagram, it can be data flow diagram, it can be any diagrammatic representation about the system. Is nothing but design. Once the design is complete, your next phase starts as a coding or implementation. And obviously design is directly dependent, coding is directly dependent on design. जितना डिजाइन सिंपल उतना कोडिंग भी सिंपल हो जाएगा. और मोस्ट ऑफ द टाइम द सक्सेस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इज डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन, राइट? क्योंकि देखो, जनरली आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर कब यूज करना पसंद करते हो? जब उसका यूआई, जिसको आप क्या बोलते हो? जीयूआई. जीयूआई स्टैंड्स फॉर
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। सो जो यूआई या जीयूआई है, जहां एक्सटर्नल कस्टमर अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, वो अगर यूजर फ्रेंडली होगा, वो अगर इंटरैक्टिव होगा, तो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स भी सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए बढ़ेंगे, ठीक है। सो वंस इट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग done, then design, then coding and implementation, and after implementation the developer will be going to test your software for two purposes. Number one, is there any error, defect, bug, failure, fault is present in the software or not, and number two, जिस रिक्वायरमेंट के लिए आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये इंश्योर करते हैं टेस्टिंग में। बिकॉज once the testing is successfully completed at the developer's end, then only that software will be deployed to the end users. Because हमेशा याद रखो, कभी भी एंड यूजर और कस्टमर के हाथ में फॉल्टी बगी सॉफ्टवेयर जाना नहीं चाहिए। तो डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज इंश्योर्स दैट कि जब आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे, उसके पहले यू शुड इंश्योर दैट, मतलब एज अ डेवलपमेंट टीम मेंबर इन ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर दैट कि भाई सॉफ्टवेयर में कोई एरर, डिफेक्ट, फेल्यूर, फॉल्ट नहीं होने चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर में नंबर वन, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, इट इज ऑलवेज डेवलप्ड इन अ क्लासिकल सेंस, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर टू, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर टू, फर्स्ट क्या समझा, फर्स्ट सबको समझा, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, इट इज ऑलवेज डेवलप्ड इन अ क्लासिकल सेंस, राइट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, software does not wear out, software does not wear out. Why software does not wear out? Because software consists of reusable programs or reusable components. जैसे कि एग्जांपल अगर यहां भी हमेशा अपन हार्डवेयर के साथ कंपेयर करते हैं, अगर कोई हार्डवेयर डिवाइस है वो खराब हो गई, तो ऑब्वियसली उसको रिपेयरिंग कॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, न्यूअर डिवाइस से भी ज्यादा महंगा पड़ जाता है, तो अपन उसको रिप्लेस कर देते, फेंक देते, करेक्ट है। तो सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, बिकॉज हमने अभी 15 मिनट पहले बोला, सॉफ्टवेयर इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, अपग्रेड होता है, एनहांस्ड होता है, मॉडिफाई होता है, बट कभी फेंका नहीं जाता। क्यों? बिकॉज सॉफ्टवेयर में वी हैव रीयूजेबल कंपोनेंट्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो आउटडेटेड हो गए हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उनको एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस। तो सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, इसका अगर मुझे एक सिंपल एग्जांपल देना होगा तो एक मूवी जो एम्बेडेड सिस्टम पे रोबोटिक एप्लीकेशंस पे आया था, जिसका नाम रोबोट ही है, राइट, रजनीकांत की मूवी थी, करेक्ट है? यस। आपने वहां देखा कि मशीन ह्यूमन क्या क्या कर सकता है, सबके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता है क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द टाइम वो मूवी देखा होगा। बट जब आपने वो मूवी देखा, वहां ये थोड़ा सा कंसेप्ट राइट होता है, सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। जो अपने हीरो थे रजनीकांत, उन्होंने किया था, अगर आपने देखा होगा तो, चिट्ठी को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया और डिसमेंटल करके फेंक दिया। ऑब्वियसली जो भी चिट्ठी या जो भी रोबोट था वो तो हार्डवेयर डिवाइस है, उसको डिसमेंटल करके फेंक देना कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हुआ क्या था, वो ऑब्वियसली उसके अंदर की जो चिप थी, राइट, वो प्रोग्रामेबल चिप थी, करेक्ट है कि नहीं? फिर जब डिसमेंटल करके रोबोट को फेंक दिया गार्बेज में, और डैनी आता है वहां से, वो जो प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम था उसको डिस्ट्रक्टर बना देता है। बिकॉज एक चिट्ठी बन गई तो ऐसे मल्टीपल चिट्ठी रातों रात बन सकती है, क्योंकि वो तो हार्डवेयर डिवाइस है बाबा। एक बार आपको समझ में आया कि डिवाइस मैन्युफैक्चर कैसे करना है,
n number of devices you can manufacture within a fraction period of time. But सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है, प्रोग्राम उन्होंने चेंज कर दिया तो वो कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम डिस्ट्रक्टर बन गया, इतना बड़ा मूवी बन गया, ठीक है। सो दीज आर द टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बाकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट, लाइक मेंटेनेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, security, usability. So these all are the characteristics of software. तो अब आपको थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट समझा अबाउट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा इंजीनियर। चलो बताओ, what is software engineering? मतलब basically what is software engineering? How you define software engineering? See, software engineering is a basic principle how to develop a software. हमेशा याद रखो, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज फोकसेस ऑन द प्रोसेस टू डेवलप द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर शुड बी डेवलप्ड within the given period of time, within the given period of time. Second, within the cost, and third, without compromising the quality aspect or quality parameter about the software. So software engineering is basically deal with how the software is delivered on time, within budget, and at the cost of quality parameter. ठीक है, सो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब हम देखेंगे कि सिलेबस में जो 6 मॉड्यूल्स दिए हैं, वो 6 मॉड्यूल्स में अपने को डिटेल में क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। आई थिंक कॉलेज में स्टार्ट हुआ रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यस, कॉलेजेस में स्टार्ट हुआ आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? हुआ। यस, यस सर। यस। अब क्या स्टार्ट किया है? प्रोसेस मॉडल्स। हाँ ओके, ठीक है, चलो अब अपन देखेंगे टीसीएस का। जैसे अपना मंडे का लेक्चर हुआ, जैसे हमने देखा कि पूरे सब्जेक्ट में अपने को क्या पढ़ना है, वैसे पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस मॉडल. सो द इंपॉर्टेंट इज प्रोसेस मॉडल, राइट? कितने टाइप के प्रोसेस मॉडल है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, राइट? कितने टाइप के अप्रोचेस है टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर. तो हम यहाँ फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल्स, देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल्स, ठीक है? कुछ स्टैटिक मॉडल्स है, कुछ डायनामिक मॉडल्स है, इवोल्यूशनरी मॉडल है, कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी है टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर. अपने सिलेबस में कौन से प्रोसेस मॉडल्स दिए हैं? फर्स्ट इज योर वाटरफॉल मॉडल. कौन सा मॉडल? वाटरफॉल मॉडल. इसी को SDLC भी बोला जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल. इसी को लीनियर सीक्वेंशियल, इसको लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है? वाटरफॉल मॉडल, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, SDLC मॉडल, ठीक है? सेकंड मॉडल इज योर प्रोटोटाइप मॉडल. सेकंड मॉडल इज योर प्रोटोटाइप मॉडल. थर्ड मॉडल इज इंक्रीमेंटल मॉडल. Third model is incremental model. Fourth model is RAD model. What is RAD stands for? Rapid Application Development Model. Fifth is your spiral model. ठीक है? Sixth model is using the concept of extreme programming, जिसको agile development model भी बोलते हैं. Then the next is a Scrum model. ठीक है? And last, which is there in your syllabus, is Kanban model. ठीक है? तो अपने को फर्स्ट चैप्टर में ये 8 अप्रोचेस पढ़ने हैं टू डेवलप अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. स्टार्ट्स विद द वाटरफॉल मॉडल,
or SDLC model, linear sequential model, prototyping model second, third incremental model, fourth is rapid application development, fifth is a spiral model, sixth is extreme programming agile model, seventh is a scrum model, and eighth is a Kanban डेवलपमेंट मॉडल. ठीक है, तो ये सारे मॉडल अपने को चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ने हैं. अब इनकी कैटेगराइज बता देता हूं. कुछ मॉडल्स है, जैसे कि फर्स्ट मॉडल इज योर स्टैटिक मॉडल. वाटरफॉल मॉडल इज योर स्टैटिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल. Compared to prototype, incremental, RAD, spiral, agile are evolutionary model, dynamic model. What is the difference between static model and dynamic model? When you say that a particular model is a static model, और कब बोलेंगे कि मॉडल डायनामिक होता है? सिंपल कंसेप्ट. अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहेगी, राइट? सो द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज स्टैटिक. That is nothing but a static model. हाँ, अगर रिक्वायरमेंट डायनामिक है तो डायनामिक मॉडल बोलेंगे. अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज स्टैटिक रिक्वायरमेंट, व्हाट इज डायनामिक रिक्वायरमेंट? स्टैटिक रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट जो कि फिक्स्ड होगी. मतलब जब तक सारी रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट नहीं होती, यू कैन नॉट स्टार्ट विद द एक्चुअल डेवलपमेंट. नंबर 1 क्या बोला देखो, व्हाट इज स्टैटिक रिक्वायरमेंट? जब तक रिक्वायरमेंट फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक यू कैन नॉट स्टार्ट विद द डेवलपमेंट. सच रिक्वायरमेंट्स आर स्टैटिक. और ऑन द अदर हैंड, once you start with the development, then उसके बाद रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट होना अलाउड नहीं है. डायनामिक रिक्वायरमेंट मतलब whatever be the current requirement, based on that requirement the development team member organization will develop a model given to the customer. They use it, test it, and in the next iteration, all iterative evolutionary models are basically designed for dynamic requirement. Because as a customer, as an end user, it is not feasible for us to explicitly specify all the requirement about software at very initial stage. समझा? तो जो भी requirements है, based on that requirement, development organization, development team members एक prototype बना के देते हैं. एंड जब हमको वो प्रोटोटाइप मिलता है, हम यूज करते हैं. एंड अगर हमको कोई मॉडिफिकेशंस, सजेशंस या न्यू एडिशनल रिक्वायरमेंट्स रहेगी तो उसको हम कन्वे करते हैं डेवलपमेंट टीम मेंबर्स को, और उन रिक्वायरमेंट्स को सेकंड इटरेशन में कंसीडर किया जाता है. तो जब हम बात करेंगे पहले 2 मॉडल का बेसिक डिफरेंस में, तो वाटरफॉल मॉडल, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल और क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल. फंडामेंटल कंसेप्ट बता देता हूं मैं. अभी तक सिलेबस नहीं किया है, हमने डिटेल में पढ़ना चालू नहीं किया है. फर्स्ट लेक्चर में मैं जैसे टीसीएस में बताया वैसे ही चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर लास्ट में अपने को पता होना चाहिए कि सिलेबस के कंटेंट क्या क्या है और हमको कैसे पढ़ना है. राइट? सो वाटरफॉल मॉडल, SDLC मॉडल, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल. इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? जब मैं बोलूंगा वाटरफॉल मॉडल और SDLC, देखो फेज चेंज है. जब मैं SDLC बोलूंगा तो फेजेस कौन से रहेंगे? फर्स्ट फेज रहेगा आपका कम्युनिकेशन. फर्स्ट फेज रहेगा आपका कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के बाद आता है प्लानिंग. कम्युनिकेशन, प्लानिंग, देन मॉडलिंग, then construction, and then deployment. right? जब आप इसको लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल बोलते हैं तो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल के फेजेस रहते हैं. पहला सॉफ्टवेयर एनालिसिस, आफ्टर दैट यू हैव डिजाइन, डिजाइन के बाद यू हैव कोडिंग, कोडिंग के बाद यू हैव टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद यू हैव डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस. Okay, the approach is a linear sequential. Okay, and SDLC बोलेंगे तो ये उसके phases दोनों correct है. Analysis, design, coding, testing, deployment, maintenance या communication, planning, modeling, construction, deployment से. अब linear sequential में क्या होता है? Analysis phase is the first phase. या यहाँ देखोगे तो communication.
इंटेंशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, waterfall model or SDLC model is designed to implement a static requirement. So in very first step is analysis. In analysis phase, a developer establish an effective communication with the customer or end user or stakeholders. What is basically the word stakeholder is? Stakeholder क्या होता है? देखो, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कस्टमर पता है, यस, जिसको आप एंड यूजर बोलते हो, डेवलपर पता है, डेवलपमेंट टीम मेंबर्स, बट स्टेक होल्डर्स क्या होता है बता देता हूं, उससे ध्यान से सुनो. स्टेक होल्डर्स आर नथिंग बट all those entities. Stakeholders are all those entities which are directly or indirectly affected by the progress of a software. मतलब ऐसी सारी एंटिटी, ऐसे सारे लोग जो सॉफ्टवेयर के प्रोग्रेस से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं. मतलब अगर सॉफ्टवेयर को फायदा होगा तो उन सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट होगा, सॉफ्टवेयर को नुकसान होगा तो उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान होगा. तो ऐसे कौन कौन मेंबर्स होते हैं, ऐसे कौन से एंटिटीज है दैट कैन बी कंसीडर्ड इनटू अ स्टेक होल्डर्स? तो सबसे पहला कस्टमर, जिसको आप एंड यूजर बोलते हो, कैन बी वन ऑफ द स्टेक होल्डर. अच्छा, डेवलपमेंट टीम मेंबर कैन बी वन ऑफ द स्टेक होल्डर. ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहा है वो भी एक स्टेक होल्डर है. सोसाइटी कैन बी वन ऑफ द स्टेक होल्डर. फाइनेंसर कैन बी वन ऑफ द स्टेक होल्डर. सप्लायर कैन बी वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स. बराबर है. उसके बाद गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स. अभी आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? देखो, अगर सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल होता है, सॉफ्टवेयर को प्रॉफिट होता है, तो एनीवे डेवलपमेंट टीम मेंबर्स को भी उसका प्रॉफिट मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट होगा, कस्टमर को भी अच्छा, एंड यूजर को भी अच्छा प्रोडक्ट यूज करने को मिलेगा, सोसाइटी बेनिफिट्स के लिए भी प्रोडक्ट अच्छे मार्केट में आएंगे. सप्लायर, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर का ग्रोथ अच्छा होगा तो सप्लायर को भी बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंसर को भी बेनिफिट मिलेगा, एंड गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ऊपर टैक्सेस इंप्लाई करती है उनको भी फायदा होगा. अगर सॉफ्टवेयर को नुकसान हो जाता है तो इन स्टेक होल्डर्स को भी नुकसान होता है. मतलब दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रोग्रेस ऑफ सॉफ्टवेयर. अब यहाँ डायरेक्टली अफेक्टेड कौन रहेंगे? ऑब्वियसली कस्टमर एंड डेवलपर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इनडायरेक्टली कौन है? सोसाइटी, सप्लायर, फाइनेंसर, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इनडायरेक्टली अफेक्टेड है. तो फर्स्ट फेज में क्या होता है? एनालिसिस में डेवलपर एस्टैब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स एंड ट्राई टू एक्सेप्ट all possible requirements from them for the software under development. And जैसे ही requirement accept होता ना बेटा, यहाँ एनालिसिस में दो चीजें होती है. सबसे पहला, जो भी सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट है उसके बारे में सारी रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट की जाएगी, प्लस उस रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है फिजिबिलिटी स्टडी. क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी, कि भाई जो कस्टमर, स्टेक होल्डर्स, एंड यूजर जो भी रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं, क्या एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट इनकॉर्पोरेट करना प्रोडक्ट में, सॉफ्टवेयर में फिजिबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम फिजिबिलिटी स्टडी परफॉर्म करते हैं. 3 टाइप का फिजिबिलिटी स्टडी है. ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, क्या वो रिक्वायरमेंट ऑपरेशनली फिजिबल है, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी. सो इफ द रिक्वायरमेंट जो एंड यूजर से आता है वो टेक्निकली फिजिबल है, ऑपरेशनली फिजिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, देन ओनली that requirement gets added into a requirement specification document, जिसको आप SRS बोलते हो, Software Requirement Specification. And SRS document is a document which consists of all the implicit, explicit, primary, secondary, ternary requirement about the software under development. ठीक है? यस. तो जो SRS डॉक्यूमेंट रहता है उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर.
अंडरस्टूड? तो ये हो गया तुम्हारा सॉफ्टवेयर। अभी आप बोलेंगे इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट क्या होता है सर? अब इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपने ये टर्म सुना होगा, राइट? रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीसिट मतलब, रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिट मतलब क्या? इम्प्लीसिट मतलब बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड, जो बताने की जरूरत नहीं है। जूम पे लेक्चर चल रहा है, मैं लेक्चर ले रहा हूं, आप लेक्चर सुन रहे हो, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, लेक्चर में आ जाओ, अटेंड करो। अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये इम्प्लीसिट रिक्वायरमेंट है। लेक्चर में आए हैं मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। अरे समझ में आया? यस। अगर सिंपल एग्जांपल देना होगा तो देखो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसको आप मोबाइल बोलते हो। न्यू मोबाइल परचेस करने जाओ, बॉक्स पे कहीं पे भी लिखा नहीं रहता दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है? क्यों? बिकॉज इट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड भाई, जब मोबाइल लेने आया है तो बेसिक पर्पस कम्युनिकेशन का ही है। हाँ, तो बॉक्स पे जो लिखा रहता है एडिशनल फीचर एंड फंक्शनैलिटी, जैसे कि स्क्रीन का साइज कितना होगा, राइट, उसका रैम कितना है, ओएस कौन सा है, स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, वो सारे एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स है। एंड हम उस एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स को ही कंपेयर करके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। बट इम्प्लीसिट का मतलब बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड, जो एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं है उसको हम इम्प्लीसिट बोलते हैं। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऐसे मतलब सिस्टम एनालिसिस, जो कि एनालिसिस फेज का आउटपुट है। एंड एसआरएस डॉक्यूमेंट में सारे रिक्वायरमेंट्स अबाउट द सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट लिखे रहते हैं। वंस इट इज डन, द नेक्स्ट फेज इज योर डिजाइन फेज, राइट? जैसे मैंने बताया, डिजाइन इज नथिंग बट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिजाइन। अपने सिलेबस में अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 4 सॉफ्टवेयर डिजाइन है, जहां हम सिस्टम के बिहेवियरल मॉडल, प्रोसीजरल मॉडल, राइट, जिसमें हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ये सब कंसेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमको लगते हैं सिस्टम का बिहेवियर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए। वंस द डिजाइन इज कंप्लीट, देन कन्वर्ट दैट डिजाइन इनटू अ प्रोग्रामिंग लॉजिक। तो कोडिंग में बेसिकली द सॉफ्टवेयर डेवलपर, और जिसको आप कोडर बोलते हो, सिलेक्ट, पहली बात तो वो डिजाइन चेक करते हैं, एंड बेस्ड ऑन द डिजाइन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपके डिजाइन के लिए यूजफुल है, आपके इंप्लीमेंटेशन के लिए यूजफुल है, वो सिलेक्ट करके स्टार्ट विद द एक्चुअल कोड। मतलब अगर डिजाइन आपका एल्गोरिदम है तो उसका प्रोग्राम इज नथिंग बट द कोडिंग। एंड वंस, ऑब्वियसली अभी बोलते टाइम अपन ऐसे ही बोलेंगे डिजाइन को कोड में लिखो, बट भाई सॉफ्टवेयर का कोडिंग करना किसी अकेले का काम नहीं। हाँ, जब हम आगे जाके बोलेंगे यूनिट और मॉड्यूल और कंपोनेंट, तब डिस्क्राइब करेंगे कि जब सॉफ्टवेयर एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट होता है तो इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसको आप प्रोग्रामर बोलते हो, उनको एक एक छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे मॉड्यूल, छोटे छोटे कंपोनेंट का कोडिंग करना पड़ता है। इंडिविजुअल कोडिंग जब उनका कंप्लीट हो जाता है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन, राइट? तो वो सब डिटेल में अब तब बोलेंगे। तो कोडिंग में एक्चुअली डिजाइन को इंप्लीमेंट करना होता है। वंस द इंप्लीमेंटेशन इज डन, देन ओनली टेस्टिंग विल स्टार्ट। एंड द बेसिक प्रिंसिपल या द बेसिक पर्पस ऑफ टेस्टिंग होता क्या है? हाउ टू फाइंड अ टेस्टिंग? सो बेसिकली टेस्टिंग इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी। अब अम्ब्रेला मतलब बारिश का सीजन है, बताने की जरूरत नहीं अपने को। अपन बारिश के सीजन में अम्ब्रेला कैरी करते हैं। जब अम्ब्रेला कैरी करते हैं तो अम्ब्रेला बारिश लेगा तो कैसे पकड़ते हैं? ऐसे सर के ऊपर, बराबर है? मतलब कंसिडर दिस एज अ सॉफ्टवेयर, तो ये होगा तुम्हारा अम्ब्रेला, बराबर? यस। तो वी शुड एंश्योर दैट कि जब हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं तो वी शुड एंश्योर दैट कि अपने बॉडी का कोई भी पोर्शन अम्ब्रेला के बाहर नहीं होना चाहिए, बिकॉज अम्ब्रेला हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं एंड इट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ रेन। अंडरस्टूड? सो टेस्टिंग का बेसिक डेफिनेशन ये है, इट इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी in which the developed software is tested with the intention of finding an error, defect, bug, failure, fault present in the software. अम्ब्रेला एक्टिविटी का मतलब क्या है?
अम्ब्रेला एक्टिविटी मतलब जब किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टर और अ टेस्ट मैनेजर must ensure that each and every corner, each and every feature, each and every functionality of a software must be tested at least once. या जब आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो तो ऐसा कोई भी फीचर फंक्शनैलिटी नहीं होना चाहिए जिसको कभी टेस्ट नहीं किया है. दैट मीन्स अ टेस्ट मैनेजर और अ सॉफ्टवेयर टेस्टर मस्ट इंश्योर 100% टेस्टिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर. And once the testing is successfully completed, then only your software is deployed to the end user. And obviously, once the software is deployed to the end user उसको use करना शुरू कर देते हैं. हमेशा development organization and development team member ensure that कि जब तक support या maintenance available नहीं है तब तक जनरली वो प्रोडक्ट को डिप्लॉय नहीं करते, क्योंकि जैसे डिप्लॉय किया कस्टमर यूज करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही कस्टमर यूज करेंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है. तो सपोर्ट एंड मेंटेनेंस इज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी फॉर अ प्रोडक्ट और अ सॉफ्टवेयर. जैसे कि हम प्ले स्टोर में से ऐप डाउनलोड करते हैं, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उस एप्लीकेशंस के अपडेट्स आते हैं, राइट. तो मेंटेनेंस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर के फीचर फंक्शनैलिटी एनहांस्ड, अपडेट, अपग्रेड होते रहती है. तो ऑब्वियसली जब तक आप आपके मोबाइल से उस एप्लीकेशंस को डिलीट नहीं करते तब तक उसके अपडेट्स आपको आते रहते हैं. तो ये है तुम्हारा लीनियर अप्रोच. लीनियर मतलब क्या रहे, जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तभी डिजाइन स्टार्ट होगा, जब डिजाइन कंप्लीट होगा तभी कोडिंग, जब कोडिंग कंप्लीट तभी टेस्टिंग, जब टेस्टिंग कंप्लीट then only deployment, once it is deployed then only maintenance and updation के phases आएंगे. तो ये अप्रोच जो है वो लीनियर है. देखो यहाँ देयर इज नो लूप बैक फैसिलिटी अवेलेबल, यहाँ कोई भी लूप बैक फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं. एंड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने सिलेक्ट किया है लीनियर सीक्वेंस मॉडल और एसडीएलसी मॉडल टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप विजिट करो, ये जो फेजेस दिख रहे हैं इनमें से कोई भी एक ही फेज एट अ टाइम एक्टिव रहेगा. मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोडिंग चालू है इसका मतलब एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड, फिनिश्ड, कोडिंग स्टार्ट है, कोडिंग के बाद आपका टेस्टिंग होता. Whereas अगर आप इसको प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इवोल्यूशनरी अप्रोच के साथ अगर कंपेयर करते हो तो आपको इसके प्रोज एंड कॉन समझ में आ जाएंगे. अब अगर कॉन्स की बात करेंगे, लिमिटेशंस की बात करेंगे वाटरफॉल मॉडल के, तो लिमिटेशंस क्या है, दिस मॉडल इज ओनली सुटेबल फॉर स्टैटिक रिक्वायरमेंट. अगर रिक्वायरमेंट डायनामिक है, कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट टाइम टाइम पे चेंज कर रहे हैं, राइट, डायनामिक रिक्वायरमेंट पे ये मॉडल सुटेबल नहीं है. रिक्वायरमेंट जब तक फ्रीज्ड नहीं हो जाती यू कैन नॉट स्टार्ट विद द एक्चुअल डेवलपमेंट. ये इसका मेन लिमिटेशन है. एंड ऑब्वियसली सेकंड लिमिटेशन ये भी है कि आप देखो सॉफ्टवेयर को टेस्ट कब किया जाता है, एट द वेरी लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. मतलब एनालिसिस कंप्लीट, डिजाइन कंप्लीट, इंप्लीमेंटेशन डन, देन टेस्टिंग. भाई सॉफ्टवेयर को टेस्ट या किसी भी चीज को आप टेस्ट जितना लेट करोगे उतना ही नुकसान है. कैसे? क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको एरर्स जितने लेट मिलेंगे उतना ही उसको एलिमिनेट करने के लिए लगने वाला एफर्ट, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट. अभी सिंपल एग्जांपल, आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपको एक 10 मार्क का क्वेश्चन आया है जिसका आंसर एक्सपेक्टेड है आपको 2 पेज लिखना. आपने एक पेज पूरा, सिनेरियो नंबर 1, आपने एक पेज पूरा लिख दिया, सेकंड पेज हाफ हो गया और 1.5 पेज होने के बाद आपको पता चला अरे ये जो मैं आंसर लिख रहा हूँ ना शायद ये क्वेश्चन का है ही नहीं, मैं गलत आंसर लिख रहा हूँ. क्या करना पड़ेगा आपको? कट करना पड़ेगा. सेकंड सिनेरियो में आपने 3 लाइन लिखा और आपको स्ट्राइक हो गया, अरे मैं जो आंसर लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन का ये रॉन्ग है, ये आंसर मेरा गलत है, आपने कट कर दिया. कौन सा सिनेरियो बेटर है? अगर एरर, डिफेक्ट, फेल्यूर, फॉल्ट डेवलपमेंट में जितने जल्दी मिलेंगे उतना को एलिमिनेट करने के लिए लगने वाला एफर्ट, ड्यूरेशन, कॉस्ट
कम रहेगा, वही अगर लेटर स्टेजेस में मिलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और यहाँ होता क्या है, अप्रोच लीनियर है, तो अगर इन केस कोई एरर एनालिसिस फेज की वजह से आया हुआ है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते टाइम आया है, तो वो देखो प्रपोगेट हो रहा है इन लीनियर फैशन। एंड अपने को वहां समझ कब रहा है वो, जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने जा रहे हैं, तब वो आपको समझ रहा है। तो जब टेस्टिंग में समझ में आएगा तो एग्जैक्टली आप लोकेट नहीं कर पाओगे, वो बिकॉज ऑफ एनालिसिस है, बिकॉज ऑफ डिजाइन है, बिकॉज ऑफ कोडिंग है। तो प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, एक डायनामिक अप्रोच है। डायनामिक अप्रोच इन द सेंस, भाई जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, कस्टमर को बात करेंगे, वो जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप दे दो, राइट। वाटरफॉल में जब तक एसडीएलसी और वाटरफॉल में जब तक रिक्वायरमेंट फाइनलाइज नहीं होती आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। एंड सारी की सारी रिक्वायरमेंट एक अटेम्प्ट में देना डिफिकल्ट है, ये भी उसका लिमिटेशन है। बट प्रोटोटाइप क्या बोलता है, इवोल्यूशनरी क्या बोलता है, नो प्रॉब्लम, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है दे दो, बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट वी डेवलप अ प्रोटोटाइप, बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट वी डेवलप अ प्रोटोटाइप, राइट। एंड जैसे ही प्रोटोटाइप डेवलप होता है, give it to the customer for testing. Customer will use it, test it. If they want any modification, suggestion या new additional requirement, updation, upgradation होगा, तो वो next iteration में, next prototype में implement होगा। वापस प्रोटोटाइप अपने पास आ जाएगा, हम यूज करेंगे, टेस्ट करेंगे, अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो नेक्स्ट प्रोटोटाइप, वो इवोल्यूशनरी अप्रोच बोलते हैं। और आजकल बहुत सारी इंडस्ट्री इवोल्यूशनरी अप्रोच पे ही चल रही है, राइट। जैसे कि अपना कंप्यूटर इंडस्ट्री, आपको बच्चे ने एग्जांपल दिया था, सर ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखो ना, पहले डॉस था, लिनक्स आया है, विंडोज आया है, राइट। विंडोज में भी बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं, तो ये इवोल्यूशनरी है, अंडरस्टूड। इवन तुमको पता है ये टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री is also working on an evolutionary approach, आईटी इंडस्ट्री इवोल्यूशनरी, इवन अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर ये भी इवोल्यूशनरी अप्रोच पे, क्योंकि गाड़ियों के बहुत सारे मॉडल आते रहते हैं। अच्छा, मोबाइल फोन का एग्जांपल लेंगे, वो भी इवोल्यूशनरी है। जब पहली बार मोबाइल की जरूरत पड़ी तो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए था, बट पता चला ये डिवाइस में कम्युनिकेशन के साथ और कुछ ऐड कर सकते हैं, राइट। मतलब उसमें कलर डिस्प्ले आ सकता है, उसमें मेमोरी कार्ड आ सकता है, कैमरा आ सकता है, राइट। इवन ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप में पहले सिर्फ टेक्सचुअल डेटा का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज था, फिर धीरे 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 जब अपडेट आते गए, फीचर्स ऐड ऑन होते गए, करेक्ट है। तो ये सब इवोल्यूशनरी अप्रोच ही है, ठीक है। फिर अपने को पढ़ना है इंक्रीमेंटल मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल, स्पाइरल मॉडल, अजाइल मॉडल, स्क्रम एंड कैनबान मॉडल। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अप्रोचेस है जो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो ये है अपना सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर आएगा, अब अगर आपने देखा होगा वाटरफॉल मॉडल, राइट, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, तो आपको आगे का सिलेबस बताने की कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। देखो ना आप, एनालिसिस है, डिजाइन है, कोडिंग के लिए आपके सिलेबस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने दिए हुए हैं, टेस्टिंग है एंड डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस, यही तो सिलेबस है, देखो ऊपर, राइट। सेकंड देखो चैप्टर क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, एनालिसिस एंड मॉडलिंग। तो रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट कैसे होते हैं, उसका एसआरएस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, मॉडलिंग मतलब डिजाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे होता है, ये सब आपको चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ना है, राइट। तो चैप्टर नंबर 2 इज बेसिकली नथिंग बट द एनालिसिस फेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच। थर्ड चैप्टर देखोगे तो थर्ड चैप्टर में है सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मेट्रिक। क्या है, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मेट्रिक। चैप्टर नंबर 3 इज योर सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मेट्रिक, ठीक है। अब क्या एस्टिमेशन मेट्रिक है, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन में क्या क्या एस्टिमेशन है, फर्स्ट तो आपका कॉस्ट एस्टिमेशन है,
सेकंड तो आपका शेड्यूलिंग, क्या है, शेड्यूलिंग एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग, सिंपल सिंपल। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट required to complete the project and what is approximately time required to complete the project। तो शेड्यूलिंग पहले पता होना चाहिए, कॉस्ट वेल इन एडवांस पता होना चाहिए। तो ऐसे कौन से टेक्निक है फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन, वो आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ने हैं, जिसमें से आपको दो टेक्निक है। पहला एफपी बेस्ड एस्टिमेशन विच इज नथिंग बट LOC बेस्ड एस्टिमेशन। LOC स्टैंड फॉर लाइन ऑफ कोड। तो प्रोग्राम का साइज कितना बड़ा है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना बड़ा है, बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर, यू कैन एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, राइट। आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे पता चलेगा, कभी कभी तो कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत जल्दी हो जाती है, कम पैसे में हो जाती है, सिंपल चीजों को ज्यादा पैसा लगता है। यस बेटा, बट ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करेंगे ना, ये हाईली क्वालिफाइड, ये दोनों फेज है। आपको कहाँ पता चलेंगे पता है, जब हम स्पाइरल मॉडल, ये जो आठों के आठों मॉडल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब आपको 8 के 8 मॉडल समझ में आएगा, गारंटी देता हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस आपको समझ में आएगा। बिकॉज ये सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मैट्रिक ये कहां से आया है, तो ये स्पाइरल मॉडल का एक फेज है, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। स्पाइरल मॉडल अगर आपके कॉलेज में अब तक हुआ होगा तो मैं फेजेस बता देता हूं, थोड़ा रिकलेक्ट करो, नहीं तो टेंशन मत लो, जब हम स्पाइरल मॉडल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। स्पाइरल मॉडल के फेजेस कौन से है, कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज एंड कस्टमर इवैल्यूएशन। कितने हैं, 6। कस्टमर कम्युनिकेशन मतलब गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, प्लानिंग, कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, राइट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज एंड कस्टमर इवैल्यूएशन। ये 6 फेजेस है। उसमें से जो सेकंड फेज है ना प्लानिंग, उसमें ये पूरा चैप्टर छिपा हुआ है। ये प्लानिंग मतलब क्या, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, estimating the schedule, estimating the effort required to complete the project, right? So planning में highly qualified and technical expert लोग होते हैं। I can say that project manager लेवल के लोग होते हैं, जिनके पास बहुत सारे सिमिलर एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होता है। वही लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट required to complete the project on time within a budget बता सकते हैं, and what is the total time required to complete the project, वो भी को highly qualified technical expert, जिसको आप डोमेन एक्सपर्ट बोलते हैं, वो भी बता सकते हैं। तो कॉस्ट एस्टिमेशन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो 2 टाइप के एस्टिमेशन है। फर्स्ट बेस्ड ऑन LOC लाइन ऑफ कोड और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट देख के, एंड सेकेंड मॉडल है जिसका नाम है COCOMO model. COCOMO stands for constructive cost model. COCOMO stands for constructive cost model required to estimate approximate cost about a project. Then आएगा आपको scheduling, कि भाई जब आपको पता है कि सॉफ्टवेयर में कितने टास्क है, हर टास्क को कितना टाइम लगने वाला है कंप्लीट होने के लिए, उनकी इंटरडिपेंडेंसीज क्या क्या है, तो आपको शेड्यूलिंग देना बेटर रहेगा। जैसे एग्जांपल, ये अपना फर्स्ट लेक्चर है, ये डेमो लेक्चर है, आप यहाँ आए, मैंने सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझा, आप गए। बट देखो जब सेकेंड लेक्चर होता है ना, तो सेकेंड लेक्चर में जब हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेजते हैं रिगार्डिंग द शेड्यूलिंग, राइट, तो हम भेजते हैं सेकेंड लेक्चर सो एंड सो डेट टाइम, ऑब्वियसली थर्ड लेक्चर सो एंड सो डेट टाइम, फोर्थ लेक्चर एंड अप्रोक्सीमेट लास्ट लेक्चर अपना कब होगा, या अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लगेगा अपने बैच को कंप्लीट होने के लिए। बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होने दो या
TCS होने दो, ये सब्जेक्ट्स हमने नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ाए हैं, हमको पूरा सिलेबस मालूम है, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर के टास्क पता है, हर चैप्टर के क्या क्या कंटेंट है, उस कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, हर टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कितना एफर्ट लेना पड़ता है, हर टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कितने क्वेश्चन आंसर लेने पड़ते हैं, हर टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कितने प्रॉब्लम्स लेने पड़ते हैं, स्टूडेंट को कौन से टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक स्टूडेंट्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं, कौन से टॉपिक में ज्यादा टाइम देना है, कौन सा टॉपिक फटाफट लेना है, ये सब हमको पता है बिकॉज हमने सेम सब्जेक्ट एन नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ाया है। तो हम आपको बता सकते हैं कि एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सिलेबस। अंडरस्टूड? तो शेड्यूलिंग में भी अगर सॉफ्टवेयर का शेड्यूलिंग करना है तो अपने सिलेबस में 3 टेक्निक्स दिए हुए हैं टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, जिसमें से पहला आपको पता है जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल चार्ट। क्या बोलते हैं? शेड्यूल चार्ट, जिसको शेड्यूल चार्ट या टाइमलाइन चार्ट या गैंट चार्ट भी बोला जाता है। सेकंड इज योर CPM। व्हाट इज CPM? स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है आपके प्रोजेक्ट का, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, एंड बेस्ड ऑन दैट नेटवर्क डायग्राम यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। एंड ये जो 2 टेक्निक है, ये दोनों कौन से प्रोजेक्ट के लिए, कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सुटेबल है? जो रेगुलर बेसिस पे फ्रीक्वेंटली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आता है जो R&D बेसिस पे काम होता है, मतलब जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिस पे काम होता है, मतलब आज कुछ तो नया इन्वेंट करने वाले हो, या आपके पास कोई भी पास्ट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे ये दोनों मेथड फेल जाते हैं और आपको जाना पड़ता है PERT के पास। PERT मतलब, बोलो, PERT मतलब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो दोनों में फर्क क्या है? CPM एंड शेड्यूल चार्ट, गैंट चार्ट आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको total number of activities performed in a project is known in advance, the time required to complete each and every activity is well known in advance, तब आप schedule chart, Gantt chart या CPM पे जा सकते हो। बट approximate time एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए पता नहीं, हो सकता है टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज क्या है वो भी ढंग का पता नहीं, मतलब आपके पास कोई भी पास्ट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तब आपको यूज करना पड़ता है PERT। अंडरस्टूड? जैसे कि अगर सपोज आप अभी सेमेस्टर 5 पढ़ रहे हो, राइट, सिलेबस अपडेट होके 2-3 साल हो चुके हैं, मतलब आपके पास पास्ट 2 to 3 इयर्स के यूनिवर्सिटी के पेपर्स है, जो आपको आइडिया आ सकता है कि अब कौन से चैप्टर में से, कौन से टॉपिक में से, कौन से टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बट जैसे सिलेबस रिवाइज होता है, नया सब्जेक्ट आता है और आपका फर्स्ट बैच है, तब आपके पास कोई भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वो टाइम पे आपको हर चैप्टर की सारी चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ती है, बिकॉज कौन से कॉर्नर से क्या क्वेश्चन आए उसका कोई भरोसा नहीं। अंडरस्टूड? यस। सो बेसिकली R&D टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए PERT फिक्स है, राइट? मतलब expected time to complete each and every activity is known। पहला दूसरा मेथड अप्लाई करो, बट आपके पास एक्सपेक्टेड टाइम नहीं पता है, राइट? आपके पास कौन सा टाइम है? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। मतलब एक्टिविटी अगर लेट टू लेट हुआ तो 2 महीने में हो जाएगी, जल्दी किया 1 महीने में हो जाएगी, एवरेज 1.5 महीने में हो जाएगी। एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं एक्टिविटी कंप्लीट होने का, तो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, 3 अलग अलग टाइम पता है एक्टिविटी के, राइट? तब यू गो फॉर PERT मेथड। अंडरस्टूड? अगर जैसे सिंपल एग्जांपल देना हो तो मैं दूंगा टास्क
say duration in months, right? And यहाँ लिखूंगा interdependency. ओके, 3 कॉलम है मेरे पास, सॉफ्टवेयर ABC है, टास्क है T1, टास्क इज T2, टास्क इज T3, T4, यह आएगा 4 3 2 4 डैश डैश T2 एंड T1। अब मुझे बताओ कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, से सॉफ्टवेयर का नाम इज ABC। द टास्क प्रेजेंट इन अ सॉफ्टवेयर आर 4 1 2 3 4, ड्यूरेशन रिक्वायर्ड इन मंथ दिया हुआ है, इंटरडिपेंडेंसी दिया हुआ है, इंटरडिपेंडेंसी T1 डैश, पहला लाइन बोलता है टास्क T1 को कंप्लीट होने के लिए 4 महीने लगते हैं, इंटरडिपेंडेंसी डैश का मतलब दिस टास्क इज इंडिपेंडेंट। T2 कंप्लीट होने के लिए 3 मंथ्स लगते हैं, इंटरडिपेंडेंसी डैश मतलब इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट टास्क। T3 को कंप्लीट करने के लिए वी रिक्वायर 2 मंथ्स, इंटरडिपेंडेंसी T2 मतलब T3 इज डिपेंडेंट ऑन T2। जब तक T2 कंप्लीट नहीं होता यू कैन नॉट स्टार्ट विद द T3 एंड सेम भी T4 जैसा। अब मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, बता सकते हो क्या? एनी आइडिया? 13 months. 13 मंथ्स। ओके चलो, एक बच्चे ने आंसर दिया 13 मंथ्स, 13 मंथ्स एक बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है। और बाकी लोग 13 मंथ्स आंसर दिया है, ओके। बाकी लोगों का क्या आंसर है? 13 मंथ जिसने आंसर दिया, बच्चे ने सब सिर्फ सम ऐड किया क्या बेटा तूने? 4 3 2 4, चलो ठीक है। फर्स्ट ही सेशन है तो हो सकता है आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। अब ये शेड्यूल चार्ट क्या है, देखो इधर मैंने यहाँ लिखा टास्क, ठीक है, यहाँ लिखा ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। कितने टास्क है रे? T1 T2 T3 T4, ड्यूरेशन मंथ है तो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। चलो, टास्क T1 एंड T2 आर इंडिपेंडेंट। अगर ये T1 T2 इंडिपेंडेंट है इसका मतलब वो डे 1 से शुरू कर सकते हैं, ओके। जब वो डे 1 से शुरू कर सकते हैं तो वो चालू हो जाएगा पहले दिन से और लगता है 4 मंथ्स टू कंप्लीट, इसको लगता है 3 मंथ्स टू कंप्लीट, ओके। देन T3 इज डिपेंडेंट ऑन T2, तो जब T2 कंप्लीट हो जाएगा तभी T3 चालू होगा, मतलब T3 यहां से शुरू हो जाएगा और लगते हैं 2 मंथ्स टू कंप्लीट, ओके। एंड T4 इज डिपेंडेंट ऑन T1, तो जब T1 कंप्लीट हो जाएगा T4 स्टार्ट हो जाएगा, लगेंगे 4 महीने, यस। मतलब आपका कंप्लीशन टाइम क्या आया? कंप्लीशन टाइम क्या आया? 8 months. अंडरस्टूड? यस, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज 8 मंथ्स। सो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपका? 8 महीना लगेगा। अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि ये आपने देखो यहाँ देखा ही नहीं, T1 एंड T2 जो है वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है। जब इंडिपेंडेंट है तो डे 1 से शुरू करो ना भाई। हाँ, T3 एंड T4 डिपेंडेंट है, तो T3 डिपेंडेंट ऑन T2, तो जब T2 कंप्लीट हो जाएगा देन ओनली स्टार्ट विद T3, तो ऐसे करोगे। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसको बोलते हैं शेड्यूल चार्ट, ठीक है। अंडरस्टूड? यस, कंफर्म? एंड अगर मुझे CPM शॉर्ट में एग्जांपल देना होगा CPM, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। T1 ये इंडिपेंडेंट है, डे 1 से शुरू कर सकते हैं, 4 मंथ का टाइम लगेगा। देन ये आ गया तुम्हारा T2 जिसमें 3 मंथ का टाइम लगेगा। T3 इज डिपेंडेंट ऑन T2, तो T2 खत्म होने के बाद ही T3 चालू होगा जिसमें लगेगा 2 महीने का टाइम, तो 3 + 2 आएगा 5।
तो उसके T4 इज डिपेंडेंट ऑन T1, तो T1 खत्म होने के बाद तुम्हारा चालू हो जाएगा T4, जिसको 4 महीने लगते हैं, तो यहाँ से जाएंगे तो आएगा 4 + 4 आएगा 8। अब मैक्सिमम कौन है, 8 या 5? तो जब कंप्लीशन के पास जाओगे तो आप सिलेक्ट करते हो मैक्स। तो व्हाट इज मैक्स टाइम, 8। तो ये इसको जो ये डायग्राम बनाया है उसको बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। ये आता है अंडर CPM। तो डिटेल में पढ़ेंगे जब सिलेबस में जाएंगे। तो इतना समझो कि ये अपने को चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मेट्रिक फॉर कॉस्ट एस्टिमेशन एज वेल एज फॉर टाइम एस्टिमेशन। डन। द 4th चैप्टर इज योर सॉफ्टवेयर डिजाइन। सो यहाँ आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम पढ़ना है, प्रोसीजरल मॉडलिंग पढ़ना है, बिहेवियरल मॉडलिंग पढ़ना है, डेटा मॉडलिंग पढ़ना है। इन शॉर्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको पढ़ना है पहले ER डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर द सिस्टम, क्लास डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर द सिस्टम, यूज केस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर द सिस्टम, डेटा फ्लो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर द सिस्टम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं फॉर द सिस्टम, सीक्वेंस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूरा आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर डिजाइन में, एज वेल एज कुछ बेसिक कंसेप्ट अबाउट डिजाइन, कपलिंग, कोहेजन, ये सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने चैप्टर 4 में। फिर चैप्टर नंबर 5 आता है आपका टेस्टिंग। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग, राइट। अभी टेस्टिंग का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, राइट। टेस्टिंग का डेफिनेशन क्या बताया, इट इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी in which the developed software is tested with the intention of finding an errors, defects or bugs or fault or failure present in the system or the software। ये हो गया उसका डेफिनेशन। बट ये जो मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजी, एरर, बग, डिफेक्ट, फेल्यूर, फॉल्ट, ये सेम है अलग अलग है? देखो सॉफ्टवेयर फेल, अच्छा पहली बात तो सॉफ्टवेयर में एरर, बग, डिफेक्ट, फेल्यूर, फॉल्ट कब आ सकता है? तो उसका आंसर है सर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सॉफ्टवेयर में एरर आ सकता है। सो एरर कैन एनकाउंटर इन अ सॉफ्टवेयर in any of the phases of software development, starts from the requirement gathering से लेके मेंटेनेंस तक, किसी भी फेज में एरर आ सकता है, राइट। अब जब आप टेस्ट करते हो तो सॉफ्टवेयर टेस्टर का बेसिक इंटेंशन है जितने मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकल सकते हैं उतना निकालो, ठीक है, ताकि जब अपने से आगे डिप्लॉय होगा सॉफ्टवेयर कस्टमर के पास, तब उनके पास एरर फ्री सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होगा, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर फेल्यूर मींस क्या, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर फेल्यूर? सॉफ्टवेयर फेल्यूर का मतलब होता है व्हेन यू से अ सॉफ्टवेयर इज फेल, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन the actual and expected result। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में कोई डेविएशन आता है तब हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर फेल हो गया। अब व्हाट इज एक्चुअल रिजल्ट? जब आप एक्चुअल में लाइव सॉफ्टवेयर को रन एग्जीक्यूट करके जो आता है रिजल्ट, दैट इज एक्चुअल रिजल्ट। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट? व्हाटएवर इज मेंशन्ड इन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जो SRS डॉक्यूमेंट में लिखा है कि कौन से फीचर एंड फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर ने सेटिस्फाई करने चाहिए, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एंड जब सॉफ्टवेयर रन होने के बाद जो आंसर देता है वो तुम्हारे एक्सपेक्टेड, अगर एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल मैच है तो सॉफ्टवेयर इज सक्सेसफुल, बट इफ देयर इज एनी डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, सॉफ्टवेयर फेल। सॉफ्टवेयर फेल क्यों होता है? Because of fault present in the software। सॉफ्टवेयर में फॉल्ट क्यों आता है? Because of
डिफेक्ट प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर। डिफेक्ट क्यों आता है सॉफ्टवेयर में? बिकॉज ऑफ एरर कैन बी एनकाउंटर्ड इन अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में एरर कब आ सकता है? फ्रॉम द डे वन से लेके डिप्लॉयमेंट तक कभी भी आ सकता है। हाँ, बट अगर सॉफ्टवेयर में एरर आया इन कोडिंग फेज तब उसको बग बोलते हैं। एंड द एरर अदर देन कोडिंग फेज इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली एन एरर। अच्छा, दो टाइप की एरर होते हैं। एरर क्यों आता है प्रोजेक्ट में, क्यों आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? दो रीजन है। हो सकता है ह्यूमन मेड मिस्टेक्स, ह्यूमन मेड मिस्टेक की वजह से सॉफ्टवेयर में एरर आ सकता है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से भी सॉफ्टवेयर में एरर आ सकता है। अब ह्यूमन मेड मिस्टेक्स मतलब क्या? जो भी डेवलपमेंट टीम मेंबर है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले सिस्टम एनालिसिस के, डिजाइन वाले डिजाइनर, कोडिंग वाले प्रोग्रामर, टेस्टिंग वाले टेस्टर, डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस की जो टीम होती है वो, तो जो भी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उनकी वजह से सॉफ्टवेयर में एरर्स आ सकते हैं। एग्जांपल दो ना सर थोड़ा सा। एक जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस फेज में क्या होता है? डेवलपर एस्टैब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द एंड यूजर कस्टमर एंड एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट। तो जब आप सारे पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्ट करते हो ना, तब हो सकता है, अब मैं ये टाइप्स ऑफ एरर बता रहा हूं आपको, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं द रीजन वाई सॉफ्टवेयर फेल्स। सॉफ्टवेयर फेल क्यों जाता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ये भी उसका आंसर है। या ह्यूमन मेड मिस्टेक्स कैसे कैसे हो सकता है, ये भी उसका आंसर है। अब एनालिसिस फेज में सपोज देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, सपोज देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। अगर कस्टमर एंड डेवलपर के बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा तो डेवलपर cannot able to extract all possible requirement from end user, right? Yes, customer frequently changing their requirements, right? ये भी possible है। डेवलपर मिस इंटरप्रेट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, ये भी पॉसिबल है, राइट? तो ऐसी पॉसिबिलिटी एनालिसिस फेज में जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर में एरर हो सकता है, एरर जनरेट हो सकता है। तो जो भी डेवलपमेंट टीम मेंबर्स रहेंगे उनकी वजह से कोई एरर आया तो ह्यूमन मेड मिस्टेक्स। बट जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं या जहां हार्डवेयर रन बाय द सॉफ्टवेयर, ऐसे टाइप के सिस्टम्स होते हैं, वहां एनवायरमेंटल इश्यूज भी आ सकते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज मतलब like radiations, magnetism और भी environment related humidity है and all, सारे environmental constraint की वजह से भी सॉफ्टवेयर में एरर्स आ सकते हैं। करेक्ट है? अगर सिंपल एग्जांपल देने जाएंगे जो अपन अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, टेलीविजन का स्क्रीन ऑन करो, एक मैग्नेट ले लो और अपने स्क्रीन के बाजू से वो मैग्नेट ऐसे करो तो आपको दिखेगा जहां से वो मैग्नेट मूव होगा स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो जाता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। टीवी फॉल्टी नहीं, अपना टीवी अच्छा ही है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट? यस, इवन ये जो सोलार हीटर सिस्टम्स जो है वो भी एनवायरनमेंट पे बहुत काफी डिपेंडेंट रहते हैं, राइट? तो अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या पढ़ना है अपने को? डिटेल में पढ़ना है व्हाट इज टेस्टिंग, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग क्या है? जैसे टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स नॉट देयर एब्सेंस। जैसे कि 100% इफेक्टिव टेस्टिंग इज सिंपली नॉट पॉसिबल। कोई भी नहीं बोल सकता कि 100% इफेक्टिव टेस्टिंग हो गया। व्हाई? बिकॉज टू परफॉर्म टेस्टिंग वी रिक्वायर टेस्ट केसेस. Test cases are extracted from test data, and as a test data tends to infinite, so it is obvious difficult to apply infinite set of test cases on a software. So 100% टेस्टिंग का कोई गारंटी नहीं देता, राइट? एग्जाम्पल अगर लेंगे तो से कैलकुलेटर पे एक बटन है, सपोज मल्टीप्लीकेशन, वो बराबर काम करता है कि नहीं अपने को चेक करना है। कितने टेस्ट केसेस? अरे इनफाइनाइट। कैसे? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डॉट डॉट डॉट
राइट। आपके पास कैलकुलेटर है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किया 25 करेक्ट है, 10 इंटू 550 करेक्ट है। आप 999999 प्रेस करो मल्टीपल टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 9999 प्रेस करो, इक्वल टू आएगा मैथ एरर। तो इसका मतलब कैलकुलेटर फॉल्टी है क्या? नहीं। जब आप प्रोग्राम लिखते हो, सिंपल चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, तभी आप डिक्लेयर करते हो इंटीजर एन। एंड जब आप इंटीजर एन डिक्लेयर करते हो तो उसका रेंज होता है -32767 टू 32768। उसके बाहर का नंबर एंटर करो 60,000, राइट। प्रोग्राम इवन ऑड आंसर नहीं देगा, क्योंकि हमेशा याद रखो हर एक सॉफ्टवेयर हमेशा अपने एक्सट्रीम बाउंड्री एंड विद इन देयर ऑपरेशनल बाउंड के अंदर काम करता है। हर सॉफ्टवेयर की एक एक्सट्रीम बाउंड्रीज होती है, बाउंड्री के बाहर वो फेल ही जाएगा। तो 100% इफेक्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेस्ट केसेस इनफाइनाइट है और इतने इनफाइनाइट टेस्ट केसेस अप्लाई करना फिजिबल नहीं है, इसीलिए 100% इफेक्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, राइट। ऐसे टोटल 8 to 10 टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स है। तो टेस्टिंग का कंसेप्ट समझेगा। टेस्टिंग में दो चीजें मैंने अपने को डिटेल में पढ़नी है। पहला, टेस्टिंग टेक्निक्स। टेस्टिंग टेक्निक्स में दो टाइप के टेस्टिंग टेक्निक्स है। फर्स्ट इज BBT, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सेकंड इज WBT, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, उनका डिफरेंस एंड द वेरियस टेक्निक्स which is conducted under black box, like equivalence partitioning, graph based testing, boundary value analysis. Various testing techniques conducted in white box, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, राइट, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है, लूप टेस्टिंग क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर टेस्टिंग क्या होता है, कंडीशन स्टेटिंग दैट इज कंडीशन कवरेज, ब्रांच कवरेज, पाथ कवरेज। तो ये जो दोनों कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट ऑफ BBT एंड WBT विद सॉल्व्ड प्रॉब्लम, आपको डिटेल में पढ़ना है टेस्टिंग टेक्निक्स में। सेकंड आता है तुम्हारा टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज में फर्स्ट इज योर यूनिट टेस्टिंग, सेकंड स्ट्रेटेजी इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, राइट। Third strategy is unit integration. Third is validation testing. ठीक है। And last is your system testing. ठीक है। यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग कैसे होता है। Once the unit testing is successfully done, next is integration testing. इंटीग्रेशन के अप्रोच कौन से है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन, बॉटम अप इंटीग्रेशन, सैंडविच इंटीग्रेशन, रिग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो पढ़ना है। वैलिडेशन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, अल्फा एंड बीटा, राइट। जनरली हम बोलते हैं, याद रखो ABCD, आइदर यू गेट AD पेयर या रिमेनिंग BC पेयर, दोनों में से एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद होगा। A मतलब अल्फा, B बीटा, C कस्टमर, D डेवलपर। तो जब मैं AD बोलता हूं तो अल्फा टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड एट डेवलपर साइड। जब BC बोलता हूं तो द बीटा टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड एट client side, customer side. The environment of beta testing is controlled by customer, whereas at alpha testing का environment is controlled by the developer. फिर उसके pros and cons and all. System testing में various types of system testing, like what is performance testing, load and stress testing, security testing, ये सारे सिस्टम टेस्टिंग के मेथड्स अपने को 5th चैप्टर में पढ़ने हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट, डिटेल में। अब आएगा आपका लास्ट चैप्टर, 6th चैप्टर। 6th चैप्टर में 3 कंसेप्ट है, SCM, QA एंड मेंटेनेंस। व्हाट इज SCM बेसिकली? SCM स्टैंड्स, उसका फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। कैसे? डेफिनेशन क्या लिखा है SCM का? डेफिनेशन SCM का बोलता है, SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ध्यान से सुनो, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग,
organizing, monitoring and controlling the necessary changes happen into the system. ठीक है, क्या बोला? SCM is an art of identifying, organizing, monitoring and controlling the necessary changes that is happening in a software development. मतलब जैसे जैसे सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने होते हैं, मतलब कैन बी न्यू मॉड्यूल एडेड इनटू द सिस्टम, existing module deleted from the system, या any structural changes happen to the system. सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, फीचर्स को ऐड करना है, एनहांस करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, रिकॉन्फ़िगर करना है सॉफ्टवेयर को, तो आपको लगता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, राइट? तो इट इज अ 4 स्टेप एक्टिविटी, 4 स्टेप का एक्टिविटी. पहला, आइडेंटिफाई द चेंज, किसको चेंज करना है, आइडेंटिफाई द चेंज, control the change, right? Identify the change, control the change, right? Ensure that the change is properly implemented, जिसको version control बोलते हैं. And fourth is status reporting. क्या बोला मैंने? Identify the change, control the change, ensure that the change has been properly implemented, status reporting. मतलब अगर आपके पास जिनको सॉफ्टवेयर है जिसमें 10 मॉड्यूल्स है, जनरली अगर एग्जांपल देना होगा तो गेमिंग सॉफ्टवेयर्स का एग्जांपल दे सकता हूं मैं, जो अपडेटेड गेमिंग वर्जन आते हैं, जैसे कि टेंपल रन 2 आया, टेंपल रन OZ आया, राइट? यस. और बाकी के गेम्स तो तुम चैंपियन हो, मेरे से ज्यादा नॉलेज तुमको है. तो टेंपल रन और टेंपल रन 2 में जनरली क्या था, एंड्रॉइड सिस्टम का सबसे पहला गेम जिसको आप टेंपल रन बोलते हो, जिन्होंने लिटरली लोगों को पागल कर दिया था. मतलब इतने लोग यूज्ड टू हो गए थे और इतने हैबिचुअल हो गए थे वो टेंपल रन के, एटलीस्ट इंस्टॉल करके दिन में 5-6 बार तो कंटिन्यूअस वो खेलते ही रहते थे टेंपल रन, इवन छोटे बच्चे बड़े बच्चे भी. ठीक है, तो जनरली टेंपल रन चल रहा था. फिर एक दूसरा सबवे सर्फर, आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं रहूंगा तो आई थिंक करेक्ट हूँ, सबवे सर्फर जब आया तो जनरली लोग थोड़े शिफ्ट हो गए टेंपल रन से लेके सबवे सर्फर पे. तो जनरल ऑब्वियसली जब अपन के कोई गेम खेलते हैं तो उनके सर्वर हिट जाता है, उनको पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स प्ले कर रहे हैं, राइट? तो एक टाइम के बाद टेंपल रन के जो सर्वर पे हिट है वो कम होने चालू हो गया होने, राइट? तो फिर पता चला, अच्छा लोग सुधर तो नहीं गए रहेंगे कि बाबा गेम खेलना बंद कर दिया, नहीं, दूसरा ऑप्शन मिल गया. तो टेंपल रन ने कॉन्फ़िगर्ड किया और न्यू गेम डेवलप किया, टेंपल रन 2. अगर ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि दोनों गेम ऑलमोस्ट सेम है. अगर चेंज क्या हुआ रहेगा तो एक ग्राफिक्स चेंज किया, करेक्ट है. जैसे सबवे सर्फर में देखो ऊपर से भी जा सकते हैं, जंपिंग भी कर सकते हैं, वो इनिशियली अवेलेबल नहीं था टेंपल रन में. तो इन शॉर्ट अल्टीमेटली अपने को गेम तो खेलना नहीं, लेक्चर पढ़ना है. चेंज क्या हुआ, तो चेंज जो ग्राफिकल मॉड्यूल था टेंपल रन 2 का, वो एक्चुअली ज्यादा लाइव है एज कंपेयर टू टेंपल रन 1 या बेसिक टेंपल रन से कंपेयर करोगे तो. इवन स्कोरिंग मॉड्यूल, अब टेंपल रन देखो आज एक आध गेम खेल के तो पता चलेगा कि अगर वो बंदा जो भागता है वो गिरा तो स्कोर इतना ज्यादा आगे नहीं भागता है एज कंपेयर टू टेंपल रन 2. टेंपल रन 2 में स्कोर बहुत, मतलब इन शॉर्ट क्या है, जब वर्जन 1 से वर्जन 2 जाओगे तो ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे. तो जो भी फीचर एनहांस्ड होंगे, जो भी मॉड्यूल आपको चेंज करने हैं, उनको आइडेंटिफाई, मतलब अगर आपको किसी को अपग्रेड एनहांस करना है ना, वापस डेवलपमेंट टीम के पास जाने की जरूरत नहीं है बाबा. SCM वाले लोग अवेलेबल है जो आपको कॉन्फ़िगर करके देंगे, वर्जन्स को अपग्रेड करके देंगे. आपको 4 चीजें देखनी है. पहला, ये चेक करना है, ये इंश्योर करना है कि आपको क्या चेंज करना है. दूसरा जो भी चेंजेस आप करोगे, कोई भी मॉड्यूल को बाहर निकालोगे तो ऑब्वियसली उसके डिपेंडेंट मॉड्यूल पे भी वो इंपैक्ट करेगा. जब डिपेंडेंट मॉड्यूल पे इंपैक्ट अगर वो करेगा तो आइडेंटिफाई करो कि ये मॉड्यूल को जब आप एनहांस करोगे तो जो इसके डिपेंडेंट मॉड्यूल है उसमें भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए, वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट होने चाहिए. इसीलिए ये 4 स्टेप का एक्टिविटी, आइडेंटिफाई चेंज, control change, ensure that the change has been properly implemented and status
reporting. And the QA is a quality assurance. So quality assurance is a final activity to be carried out in the development of a project. कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यही सोचता है कि मेरा सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए. हाँ, बट कोई भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी सॉफ्टवेयर या ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन तभी हो सकता है जब वो प्रोसेस पे, देखो एक कंसेप्ट आएगा अपने को, मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम. क्या आता है? मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम या 4 P's. 4 P's. P स्टैंड्स फॉर पैरट. 4 P's. क्या बोलता है P's? हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए 4 P इंपॉर्टेंट है. कौन से? पीपल, प्रोसेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट. क्या बोला मैंने? पीपल, प्रोसेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट. अब पीपल मतलब क्या रहे? ऑब्वियसली डेवलपमेंट टीम मेंबर्स जो इन्वॉल्व है डेवलपमेंट में. पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट. इसमें से सेकंड, बट मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस. मतलब जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था ना, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो. मुझे 95-99% चाहिए, ये मत सोचो, वो तो आ जाएंगे. उसके लिए कर्म करते रहो. प्रोडक्ट के बारे में मत सोचो, समझा? फल के बारे में मत सोचो, कर्म करते रहो. कर्म क्या करना पड़ेगा? रेगुलरली, रोज, सिंसियरली पढ़ाई करना पड़ेगा. राइट? अगर आप रेगुलरली, सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, मतलब आपने ध्यान किस पे दिया? प्रोसेस पे. अगर आपने प्रोसेस प्रॉपर किया तो प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर होना ही है. राइट? तो जब क्वालिटी एश्योरेंस हम बोलते हैं तो हम क्वालिटी बोल के नहीं चलेंगे, कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी है. जैसे कि पहला क्वालिटी स्टैंडर्ड जिसको मैकॉल क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, पढ़ेंगे उधर डिटेल में. दूसरा क्वालिटी स्टैंडर्ड है जिसको 6 सिग्मा बोलते हैं. एंड तीसरा जो ये पहले दो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थे, तीसरा वाला है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, एंड दैट इज नथिंग बट ISO स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो क्वालिटी सर्टिफिकेट इशू का है फॉर द प्रोसेस एज वेल एज द प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए. And maintenance is obviously a continuous lifelong activity to be carried out in a development, because जैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलप होता है से लेके जब तक एंड यूजर उसको यूज करते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस आते ही रहते हैं, कस्टमर को सपोर्ट चाहिए ही रहता है. तो मेंटेनेंस इज नथिंग बट प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट that can be a backup support, that can be a technical support, communicational support, all types of support for the end user comes under the maintenance phase. Understood? अरे समझा? Yes? कुछ आंसर नहीं आ रहा है मेरे को. यस सर. आइडिया आया सिलेबस में क्या है टोटल? हाँ. अच्छा, अभी आप बोलोगे सर फिर ये हमको बताओ ये थियोरेटिकल है क्या? तो क्वेश्चन ये है बेटा, प्रोसेस मॉडल सारे कंसेप्चुअल है, मॉडलिंग एंड डिजाइन, इसमें डिजाइन रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम्स है, सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मैट्रिक्स फुल्ली एनालिटिकल, टेस्टिंग इज प्योर कंसेप्चुअल मैथमेटिकल, एंड SCM एंड QA मेंटेनेंस इज लिटिल बिट थियरी. ठीक है? ओके. अब जितना बताया सब्जेक्ट का डिटेल आइडिया आ गया आपको? आकाश? यस सर. यस. आफ्ताब, अनुष्का, यस सर. अनुष्का शिंदे दोनों, अपेक्षा, आर्यन, चिन्मय, चिराग, दत्तात्रेय, गायत्री, मोहम्मद, नम्रता, ओजस, प्रतिभा, रितिका, साई, स्मित, सोहम, स्वाति, तन्वी, यस सर. यासीर. पक्का? यस सर. यस. ओके. यस. ओके. ठीक है,
चलो फिर आज फर्स्ट सेशन था, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर। हाँ, चैट में क्या बोल रहे हैं? यस यस बोल रहे हैं, या सीरियस तन्वी यस। ओके ठीक है, सो स्टॉप करेंगे यहाँ पे। चलो देन वी विल स्टॉप। बाय बाय। थैंक यू सर। चैट में क्या है? दत्तात्रेय, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताओ मॉड्यूल वाइज। ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएंगे। अगर अब भी बताना होगा तो वेट, बता सकता हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बट एग्जैक्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लास्ट 4 पेपर का चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम करके दूंगा, राइट। बट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है वो जैसे अपन चैप्टर शुरू करेंगे ना, जैसे लिखूंगा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस मॉडल, तो पास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से ब्रैकेट में मार्क्स लिखेंगे एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर वाइज जाएंगे तो बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलो देन बाय बाय। हाँ मिल जाएगा चिन्मय, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू। यस, चलो देन बाय बाय। वैभव जी, ओ वैभव जी, यस सर, एंड करूंगा। यस चलो बाय बाय। यस सर, थैंक यू सर। यस।